Hello, everyone. So, welcome to another episode in Community. For those who are looking at for the first time, my Community is a research lab whereby we break the science of content into a systematically understandable, structured way. And today we have with us Karan Bell. So, most likely you know him. He is a very famous person on LinkedIn as well as Twitter, and has close to 13,000 followers on both the platforms, Twitter and LinkedIn. He's a chartered accountant and was working with PwC and KPMG into M&A tax or deal advisory taxation. And welcome, Kanan. How was your day? How it has been? It's been good. It's been good watching Ishan Kishan hitting 200 and Virat Kohli scoring 100. It was really good. How about yours? Not a cricket fan, to be honest. So I'm guessing it's something to be celebrated. And I'm also happy for that if India wins that. Not an issue. Yeah. Okay. So like first question, you have worked with two of the like big fours, right? So you have left your job in July 21, and then since then you are into completely I forgot to introduce about your ventures. One is the Rupee tool, which is a wealth management services, and another is learnpersonalfinance.in, which is a financial learning startup, right? So, like, what inspired you to put your these two very niche and very kind of a dream jobs and start something of your own? मजा नहीं आ रहा था. Generally saying, मजा नहीं आ रहा था in what I was doing. ऐसा नहीं है, काम बहुत मजेदार था, बहुत इंटरेस्टिंग था, वैसे जरूर मजा आता था जब काम करते थे. But the problem was, I was somehow getting a feeling that this is gonna be my life for the next 30-40 years, which I didn't want it. So of course, I wouldn't want it even now or even 1-2 years later on. But God forbid, I may not go over there just because I don't want to go back to that place again. And had I known the entrepreneurship journey is so tough as against what it is shown on the internet, I might have not quit that job as well. बट यस, वो किक नहीं आ रही थी जिसे कहते हैं ना, तो इसलिए मैंने छोड़ा. और ऐसा नहीं कि मैंने किक नहीं आई, कल आज किक नहीं आई, कल सुबह पेपर डाल दिए और 2 महीने बाद निकल गया. 1 साल लगा था, मेरे को हिम्मत लगी थी छोड़ने में. So that was there, that I wanted to build something of my own, something that is the next big thing. ये जरूर माइंड में था थॉट, और इसी को लेके मैंने छोड़ा था. But that's what we are working on, and it's a very tough journey, startup journey. It's a very lonely journey. No one tells you where you are going wrong. And in a startup, when you are roaming around with your friends who are doing job, who are getting increments, it's very tough to understand things, because for them to understand things, because हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एसेट होता है टाइम. ठीक है. सो वी हैव फिक्स्ड आउटफ्लोज, हमारे फिक्स्ड इनफ्लोज नहीं होते. तो वो वाली जो बॉन्डिंग होती है ना, वो मैं अपने दोस्तों को समझा भी नहीं पाता कि यार, तुम्हारे पास ठीक है, तुमने 2-4 दिन की छुट्टी लिया, एट द एंड ऑफ द मंथ तुम्हारे पास पैसा आ ही जाएगा. बट जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा, पूरे दिल से दिन रात मेहनत नहीं करूंगा, तब तक मेरे पास पैसा नहीं आने वाला. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा. So yeah, I know I deviated a bit from the topic, but yeah, that's a little bit about the startup journey that I have experienced in the last 1.5 years, and that's how I left my job. Okay, and like a quick thing, when you said कि एक साल लगा to gather those guts, I think those guts means inflows as well, right? कि you at least have something to sustain your life. नहीं नहीं, पैसा जमा करने के लिए नहीं, जॉब Okay. छोड़ने के लिए. Because I come from a family which has Hmm. always done job. And my grandfather, he was paralyzed at the time when I left my job. So he wasn't in the best state of his mind, I believe. So he thought I was fired, right? He thought I was fired. Otherwise, how can anyone leave that kind of job? Like, I was also very fascinated about the place where I went into ultimately, and it was my dream to do an articleship in a big four and a job in a big four and grow up the ladder over there. So he thought that I have been fired, and he was in a very disturbed kind of condition, I believe. Then he started crying over that thing as well. So I come from a family. He was in a government job. My father he's also CA. My father is also CA. So he is also in a job setup only in the corporate. So he has been doing job since the last 30 years of his life. But for this thing to happen, it was very tough.
मतलब for me to break that mental barrier. And even I would say that I don't have those shrewd or maybe the street smart skills that an entrepreneur needs right now. But of course, with time you build things, and there's always a first time, even in your life and even in generations. So yeah, that's there. Got it, got it. That makes sense. That makes complete sense. And of course, all the best for your journey. Now coming on to the content part. So, what was like? I think probably the first time that you posted, or whenever the thought crawled to your head, like what content should I create? So, for my first question is, what was the motive of creating content? Okay, yeah. So let's start with that, and then eventually I'll move on to the next question. So I used to write on Facebook in the early days of 2010s and everything. So स्टेटस लिखते थे, लोगों को पसंद भी आते थे. आई यूज्ड टू राइट अबाउट पॉलिटिक्स बैक देन, राइट. बट आफ्टर आई स्टार्टेड सीए, और मतलब जब बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना चालू किया, देन आई हैड टू क्विट ऑल दोज थिंग्स, राइट, बिकॉज you ultimately have to have a laser like focus to clear CA in the first attempt, and of course that's everyone's target. So what I did was, after I cleared inter CA, I started writing on Quora, because I genuinely wanted to help people uh, not make the mistakes that I made and do the right things which my seniors told me. And since I come from a family which has 9 chartered accountants, including me, so other than me, there are 8. And then there were people who were pursuing C at that time, my cousins. They used to guide me. So I always felt that यार मेरे स्कूल का एक फ्रेंड है, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास वो वाली गाइडेंस नहीं थी जो मेरे पास थी. सो आई शुड बी पेइंग इट फॉरवर्ड. मैं उसको भी पढ़ाता था, मतलब पढ़ाता था एज एन आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू राइट पेपर एंड एवरीथिंग. सो आई वांटेड टू टेल इट टू द वर्ल्ड कि भाई, अगर आपको सीए पास करना है तो आपको पेपर ऐसे लिखना है, आपको अगर सीए पास करना है तो आपको ऐसे पढ़ना है, अगर आपको सीए पास करना है तो आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी, तब जाके सीए होती है. सो दैट्स हाउ आई वांटेड टू हेल्प द वर्ल्ड, हेल्प द सीए फ्रेटर्निटी, आई वुड से. देन आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन कोरा. कोरा पे बहुत ज्यादा प्यार मिला विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. उस टाइम 5,000 फॉलोअर्स बहुत बड़ी बात होती थी कोरा पे. 5,000 फॉलोअर्स मेरे अभी भी उतना ही है, क्योंकि मैंने उसके बाद लिखना छोड़ दिया था 2017 के बाद. सो आई यूज्ड टू राइट अबाउट माय आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, आई यूज्ड टू राइट अबाउट माय आर्टिकलशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस. केपीएमजी में सब लोग बहुत पूछते थे कि आप केपीएमजी में आपकी आर्टिकलशिप है, आप घुसे कैसे. तो मैं उसके बारे में पूरा मैंने डिटेल्ड आंसर लिखा कि मैंने क्या किया अपने लाइफस्टाइल में, मैंने क्या चेंजेस लाए, बिकॉज इट वाज अराउंड almost 1.5 2 years ever since I left my school, and then I went to KPMG ultimately for the interview round. So I could see that there was a gap in my fluency with respect to English. And of course, you have to be very good in your speaking skills when you sit in an interview in a Big Four. So I started speaking English at my home for about a month, so that my fluency is not so that my fluency is intact, right? And it doesn't show to the interviewer, to the HR, that this guy doesn't have good communication skills. So I used to write about everything कि इस टेस्ट पेपर की कहाँ से तैयारी करनी है, इस पार्ट की कहाँ से तैयारी करनी है, आपको अप्लाई करना है तो इस लिंक से करना है. अभी भी मेरी कोरा की प्रोफाइल पे वो पिंड है. तो कोई मुझसे पूछता है, मैं उसको कहता हूँ ये पिंड आंसर पढ़ो, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी. मैं आज भूल चुका हूँ, लेकिन मैंने जब Got it. लिखा था तब मैंने बहुत तरबियत से लिखा था ये आंसर, So आप it's इसको जरूर पढ़ना. सो got दैट it. इज देयर. So more or तब less, it's लिखना मैंने like you करना चालू wanted to किया. help, and eventually वो कोरा या फेसबुक से स्टार्ट हुआ था, and then there is this itch to write, and eventually वो सीए से फाइनेंस पे शिफ्ट हो गया, and then eventually the kind of content the platform promotes, so that's where you start switched on to Twitter या LinkedIn That's as the the case. kind of platform we are building also. Like Correct. just before this call, we were discussing about learn personal finance as the objective. So Hmm. we believe that there's a gap. अभी मतलब जो बच्चे हैं, जो Gen Z है या मेरी भी जनरेशन है, हमको बहुत जल्दी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें तेजी से पैसा कमाना है, 21 दिन में पैसा कैसे डबल करना है, हम इस पर फोकस करते हैं. एंड कुछ एक पार्ट ऐसा है, वो कहता है कि अभी कमा लो, कल का तो कुछ नहीं पता. अगर कल का True. कुछ नहीं पता तो फिर रिटायरमेंट तो मतलब आप में से 99 लोग देखने ही नहीं वाले. Right. और जो देख भी लेंगे वो रिटायरमेंट वो मरते दम तक काम करेंगे. दैट्स नॉट हाउ यू शुड प्लान योर लाइफ. क्रिटिकल गोल्स जरूर होने चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए, बट आप क्रिटिकल गोल्स अपने बांध के चलो, उसके ऊपर जो पैसा बच रहा है करो, मस्ती उड़ाओ, जो भी करना है करो.
हमारा लर्न पर्सनल फाइनेंस से भी ऑब्जेक्टिव है, वी डोंट हैव कोर्सेज व्हिच आर प्राइस्ड लाइक 10 15 20,000 रुपीस, वी हैव जस्ट all almost all the courses are within 4 digits only, like triple nine. ठीक है, तो हम वहाँ पे यही सिखा रहे हैं लोगों को कि आप मतलब कंटेंट जो हम बनाते हैं दैट इज फाइन, उसमें भी हम वैल्यू ऐड करते हैं। हम जो कोर्सेज भी देते हैं, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं, उसमें भी हम यही बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंसेस आपको कैसे मैनेज करने चाहिए, अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं, म्यूचुअल फंड्स ढूंढने हैं, तो आपको कैसे ढूंढने चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं रखनी चाहिए, पैसा कैसे कमाया जाता है कैसे नहीं कमाया जाता। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है लर्न पर्सनल फाइनेंस को लेकर भी, कि हम इंडिया को एक फाइनेंशियली लिटरेट देश बना पाए और वो गलतियां ना करें जो वेस्ट ने करी थी। This makes sense. This makes sense. Also, plus like one more thing. For example, like I've been using LinkedIn for like quite a some time now, so I understand that in order to gain followers or connection on LinkedIn, you need to have two things. First of all, your basic profile. So already, if you are someone who has been to Stanford or somewhere, and then you are creating even a decent content, you can have a close to 20, 40,000 followers. But on Twitter, it's more or less completely the game of content, right? Or unless you are some political magma person, right? Since you have a great following on Twitter, so I believe your content game is super strong. So say someone, a newbie like me, who wants to enter into a content game of content creation, so first thing, how should I identify the genre? Like one thing is that what are expertization I have, maybe like I'm also a CA, so provide my CA journey, I'm also interested in stock markets and number of things, right? So first question is that how do I identify my genre? Second thing, once you start experimenting with two or three things, like for example, I particularly like to post on humor and something like a political humor or a finance humor combined, right? How do I take feedback on it? Like initially, if I have 2,000 followers, my reach would be low. But how do I know okay, if I'm going in a correct direction? To just summarize my question, how to identify the genre, and second thing, how to take feedback if I'm going right or wrong. First, how to identify the genres, right? It should be something that you are passionate about and you enjoy doing it. मतलब अब मैं अगर सर्जरी पे बनाने लग जाऊं चीजें, तो एक तो मैं कॉम्पिटेंट भी नहीं हूँ, सीए कनन बहल नाम दिखता है, काम मैं डॉक्टर वाले कर रहा हूँ, तो दिखना वो गलत चीज है। अगर मैं पैशनेट अबाउट इट ना, तो शायद मैं एक डॉक्टर से बढ़िया भी चीजें लिख सकता हूँ शायद, बट आई एम नॉट पैशनेट, सिंपल चीज है। 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मैं उसके बारे में इतना पढ़ लूँ, फिर अलग चीज है, बट आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट, राइट? व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट इज पर्सनल फाइनेंस। बचपन में 9वीं क्लास में मेरे पिताजी ने मेरे को रिच डैड पुअर डैड पढ़ाई थी। बचपन से मैंने अनिल सिंघवी जी का चेहरा देखा है, क्योंकि मेरे पिताजी जी बिजनेस सीएनबीसी आवाज देखा करते थे। सो इट्स समवेयर इन माय ब्लड, राइट? और मेरे को मजा भी आता है लिखने में। सेकंड, उसके बाद फिल्टर होता है कि क्या लोगों को इसकी जरूरत है, मतलब लोग इसको पढ़ना एंजॉय करते हैं, देन फाइन। तो दोनों चीजें फिट हो गई, अब आप इसमें आपने जॉनर सिलेक्ट कर लिया। सेकंड, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एक तो आपको खुद से क्वेश्चन करना होता है कि आप वैल्यू एड सही में कर रहे हो, ठीक है? मतलब ह्यूमर अगर मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे तो शिट पोस्टिंग है, देयर इज नो वैल्यू यू आर एडिंग ओवर हियर। यू आर ब्रिंगिंग अ स्माइल टू पीपल्स फेसेस इन दिस हाइपर टेंशन वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल हु हैव हाइपर टेंशन, राइट? सो ह्यूमर ऑल्सो एड्स वैल्यू। तो आपका जैसे राहुल है, उसके कितना मतलब अच्छा रिएक्शन आता है ट्विटर पे नहीं, सॉरी, LinkedIn. लिंक्डइन पे, बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमरस पोस्ट्स, राइट? तो वो कितनी सही चीज है, मतलब ही इज ब्रिंगिंग अ स्माइल टू पीपल्स फेस इन इन द मिडल ऑफ अ मंडे, ठीक है? तो कहाँ मंडे मॉर्निंग ब्लूज होती है, एंड ही इज ब्रिंगिंग स्माइल्स। सो ऐसा नहीं है ह्यूमर में वैल्यू नहीं होती, ऑफ कोर्स इट एड्स वैल्यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कहीं आप ऐसे ही मतलब जबरदस्ती किसी की खिंचाई तो नहीं कर रहे। आई सी मेनी पीपल, वो सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ठीक है? नेगेटिविटी से आपको भी कुछ नहीं मिलता, और अगर आप नेगेटिव कमेंट्स किसी एक बंदे को टारगेट करके डाले जा रहे हो ना बार बार, तो इट शोज कि आप उससे Biased नीचे and हो। बिकॉज correct. महेंद्र सिंह धोनी मेरी बुराई नहीं करेगा, True. मेरी बुराई, कनन भाई की बुराई, दुष्यंत कर की बुराई नहीं करेगा ना महेंद्र Correct. सिंह Correct. धोनी, बट Correct. मैं उसकी करूंगा क्योंकि मैं उससे नीचे हूं ना, तो Right. मतलब वो चीज नहीं करनी, ठीक है? सेकंड, ऐसे सारे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फॉलोअरशिप बहुत वायरल होती है, बट दैट्स नॉट समथिंग कंस्ट्रक्टिव, आई बिलीव। फिर फीडबैक उसमें यही होता है कि क्या लोग एंगेज कर रहे हैं, वो पहले दिन नहीं होता। मैं आपको ना किसी दिन तसल्ली से दिखाऊंगा मेरा ट्विटर कैसे दबा रहा था। जुलाई 22 तक 791 फॉलोअर्स थे मेरे, अभी ऑलमोस्ट 14,000 होने वाले हैं। तो वही है यार, कंपाउंडिंग का जो ग्राफ होता है वो सिर्फ आपको नहीं, ऐसा नहीं, आपको एक टेलविंड चाहिए। टेलविंड थी मेरी
कि मतलब मैं बहुत अच्छा कंटेंट और अच्छा कंटेंट लिखने लग गया था। पहले भी था, ऐसा तो नहीं था कि पहले मैं बिल्कुल नहीं लिखता हूँ, अच्छा लिखने लग गया था, मेरे को थोड़ा एल्गोरिदम समझ आने लग गया था। और उसके बाद कुछ एक अच्छे अकाउंट्स थे लोगों के जो मेरा रीट्वीट करने लग गए थे, एंड दे हैड मैसिव रीच। फिर उसके बाद मतलब वही है, लाइव बीट ट्विटर, ऑल यू नीड इज वन गुड ओवर। ठीक है, Correct, correct. मतलब बीट लाइव, बीट क्रिकेट, बीट ट्विटर, यू जस्ट नीड वन गुड ओवर। और उसके बाद इसमें एक भी ये भी चीज है कि कंपाउंडिंग का ग्राफ आपको बहुत लंबे टाइम तक ऐसा दिखेगा, कब Hmm. ऐसा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे टिल हियर। तो पहले दिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको एंगेजमेंट मिल जाएगी, वो यहाँ पे होना मुश्किल है। लिंक्डइन पे होना आसान है, बट लिंक्डइन पे आपको क्या कहते हैं, एक पॉइंट के बाद निकलना ऊपर मुश्किल है। मतलब फ्रॉम 15,000 टू 1 लाख फॉलोअर्स आपको पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्विटर पे ये चीज थोड़ी आसान है, मतलब आपको शुरू में आना मुश्किल है, ट्विटर पे ऐसे होता है, लिंक्डइन पे थोड़ा ऐसे 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 करके बढ़ता है। सो दैट्स द थिंग। Got it, got it, got it, got it. That makes sense. And in fact, like just one thing to add, like this passion and probably if you're adding a value or not, that is correct. But I think it's very, very important कि that dopamine factor should always be there in your content. अगर मैं 250 वर्ड्स की पोस्ट पहली बार में लिख रहा हूँ, the point is people have to invest their time, right? And you do not invest until you have a trust. So first thing is I have to build that trust, and then I'll ask my audience to invest in me. And in order to build that trust, there can be multiple things. Like first, you kind of write small posts where the investment is very less, or say you try to show your creds by whatever your degrees or whatever the certificates that you have, right? Like in fact, on Twitter, your name is Karan Bell, and on LinkedIn, like it's Karan Bell, right? या So that's like one of the trust factors that you have developed on Twitter. Ki this person मैं is a इस CS, तो इसका मतलब रीजन उसका बताता हूँ, मैं काफी इसका अच्छा रीजन सा बताता हूँ हाँ मैं इसका रीजन बताता हूँ। लिंक्डइन पे क्या होता है, सी, आई एम नो बडी, राइट। मैं कोई मतलब बड़े, मतलब मेरे पास ना रैंक है, ना मेरे पास बीसीजी है, ना मेरे पास हार्वर्ड है, ना मेरे पास स्टैनफोर्ड है, ठीक है। तो मेरे पास कोई ऐसा क्रेडेंशियल नहीं है विच इज सेलेबल। द ओनली सेलेबल पार्ट दैट आई हैव टुडे इज माय टू लेटर्ड प्रीफिक्स। अब वो मेरे को शुरू में लगाना पड़ेगा टिल द टाइम आई बिल्ड माय क्रेडिबिलिटी ऑन माय ओन। मेरे को भी पसंद नहीं है, मैं फेसबुक पे सीए करण नहीं लिखता, मैं इंस्टाग्राम पे सीए कनन नहीं लिखता, मैं यहाँ पे इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मतलब भाई मैं थोड़ा ठीक है, ठीक ठाक थोड़ा सही बहुत पढ़ा बात है लिखा हूँ, आई करेक्ट डिजर्व योर अटेंशन फॉर 2 मिनट्स, प्लीज इसको पढ़ लो। करेक्ट तो अब क्या है, लिंक्डइन पे ना लिखा आ जाता है सीए, आगे XPWC, ये सब हाँ राइट फाउंडेशन राइट एंड पर्सनल फाइनेंस, राइट वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बिना सीए नाम पहले लिखे, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखा। करेक्ट ट्विटर पे नहीं आता, ट्विटर पे सिर्फ आपका नाम लिखा आता है, फोटो लिखी आती है, फोटो में मैं सीए का लोगो तो लगाऊंगा नहीं, अपना ही राइट लगाऊंगा, करेक्ट अपनी फोटो करेक्ट लगाऊंगा, तो इसलिए नाम में पहले मैंने वहां पे लिखा है। हम्म वंस आई बिल्ड दैट काइंड ऑफ ब्रांड, मैं वहां से वो भी रिमूव कर दूंगा। करेक्ट that makes sense. तो पहले you have to हाँ, build an initial trust, then you ask your audience to invest in this. बाकी फिर जो तुम्हें आता है plus what they want, just found a that A union B वाला set and then just sell it. राइट Right. राइट। That makes sense. Okay, so like you have been part of community, right? Like I think you are one of the initial members of it. So like on a very basic level, I don't want you to give a very detailed level answer, but like what do you think? What is community about? And second, how you have gained or contributed for this thing? सो गेन की मैं पहले बात करता हूँ, बिकॉज ज्यादा मिला है, दिया कम है। तो मिला यही है यार कि मतलब एकदम बढ़िया बढ़िया लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला, एंड देन टू अंडरस्टैंड लिंक्डइन बेटर, एंड देन अभी तो चालू ही हुआ है, मतलब इट्स जस्ट द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, वंडरफुल कम्युनिटी, ठीक है। तो मतलब अभी मेरे को यही लगता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला, उनका व्यू समझने को मिला, एंड दे ऑल्सो यूज टू गिव मी फीडबैक, तो मिला ज्यादा है, मैं यही कहता हूँ। दिया मतलब मैंने यही है कि मैं मतलब जो मेरे पास इंसाइट्स आते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ जितना भी मैं दे सकता हूँ। हमेशा मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मतलब देते रहो, जितना दे सकते हो देते रहो, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल प्रोप्राइटरी रख के कभी किसी का फायदा नहीं होता, ठीक है, अनलेस वो मेरा ट्रेड सीक्रेट हो। बट लिंक्डइन पे ग्रो करना, ट्विटर पे ग्रो करना कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं है, एंड हम बहुत छोटे लोग हैं। आई हैव सीन पीपल जिनके 3-4 हजार फॉलोअर्स बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, एल्गोरिथम मेरे को समझ आ गया। ऐसे नहीं करना चाहिए, वी शुड ग्रो इन अ कोहेसिव मैनर। तो वही मेरा टारगेट रहता है कि कभी भी कुछ हो, मैं किसी को ओपनली फीडबैक दूं और लूं भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब देता गया लिया भी, बिकॉज आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट, राइट।
तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस कम्युनिटी का पार्ट होके, एंड इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग टू बी इन. All right, all right. Thank you so much, Kanan. I think it was a really insightful session. Baki, I think this is all after. I think we had a conversation for about an hour before this, right? So वहाँ पर काफी that was really exciting. But I think this was really something, the juice of the whole conversation. कि whoever is watching this video, they'll certainly gain from it. And I think, yeah. You have anything to ask from me? नहीं यार, बढ़िया काम कर रहे हो, एंड डेफिनेटली बाद में जो बात करी थी पहले वो उसको ही कंटिन्यू कर लेंगे हाँ बिल्कुल अराउंड right. careers and everything, but definitely it's a wonderful platform to look out for, and anyone who's watching this video, do follow community, and it's a wonderful platform. Stay connected. That's Thank all you I so can say. much.